slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. You know, people give gifts on birthdays. These days, people give gifts on birthdays and other occasions. But there are people who give gifts, and there are people who give mugs. Next time कोई आदमी मग देना उससे दोस्ती तोड़ दो. Because that person has zero thought process in life. The whole idea behind giving a gift is कि मैं सोचूं सामने वाले को क्या पसंद है, थोड़ा thought डालूं उसे वो दूर. The whole idea behind giving a mug is भैया जरा दिखाना तुम्हारे 150 रुपए के अंदर क्या आता है. And people give mugs with motivational quotes written on the mugs. नहीं, recently I got a mug which read "Never give up." And I'm like, मुझे चाय पीनी है यार. This is the time that I really want to give up. मुझे आराम करने दे. Some people just take it to next level. Some people give you customized mugs. I got a mug with my own photo on that mug. And I'm like, thank you so much for giving me a new photo ID proof. Next time मैं एयरपोर्ट में जाके यही दिखाने वाला हूँ. Photo ID सर ये है ना मग चाय भी हो जाने. I also love watching cricket, and I love watching cricket with good commentary. क्योंकि अगर कमेंट्री अच्छी हो ना तो बंदे खराब से खराब मैच में इंटरेस्ट आ जाता है. मतलब यूएई और अफगानिस्तान का मैच कौन देखता है? मतलब अफगानिस्तान का शायद देखते होगी यूएस आर्मी. भाई हमने जिन जिन लोगों को नहीं मारा है लोग खेल कैसा रहे हैं? But there are different commentators. They have their own styles. You know. There's someone like Harsha Bhogle. He will talk a lot about statistics. There's someone like Sunil Gavaskar. He will talk a lot about skills. But nowadays there's a new commentator in the circuit. Shoaib Akhtar. And this guy irritates me in more than many ways. एक तो आज के फैशन वाले ज़माने में बेल बॉटम पैंटे पहन करके आ जाता है. And if you look at his jacket properly, there's a big S on jacket. There's a big S. That's his initial, Shoaib. Like my name is Gaurav. Just imagine if I get a big G written over here. आप लोगों के मन में तो एक ही वर्ड आएगा ना? एक ही वर्ड आएगा ना, गधा. पर तू पापी है, तेरे मन में गंदा आया होगा. तूने सोचा गांडू, मुझे पता है. And in his Urdu Punjabi accent when he does commentary, तो पता नहीं चलता क्रिकेट की कमेंट्री हो रही है कि रेसलमेनिया का मैच हो रहा है. This guy does not have letters between words. This guy does not have letters between words. This guy does not have I. It's never India. It's always like, oh भाई India team बहुत बढ़िया है. And I'm like, dude, India? क्या मेरे देश को कच्चा बोला तूने? You should go back to Pakistan. क्या ये? He never says Virat. It's always Virat. Virat Kohli. This is how he claims Virat Kohli. Virat बंदा बहुत तगड़ा बाजी. Virat जब छक्का मारता है ना, बोल पूरा का पूरा इंडिया के बाहर चले जाता है. अरे what the fuck is बाहर? तुझे मराठी किसने सिखाई? और विराट छक्का मारता है, बोल इंडिया के बाहर जाता है. सुरेश रैना का आधा छक्का अंदर गिरता है क्या? छक्के तो सारे बाहर जाएंगे ना. कैसी बातें कर रहा है यार? This guy has a fixation with Mohammad Shami. Mohammad Shami. This is how I explain Mohammad Shami. नहीं, मोहम्मद शामी वो गेंदबाज नहीं 6 महीने पहले हुआ करते थे. नहीं, वो बदल गए. अरुण भाई वो बदल गए हैं. यहाँ से अरुण लाल कह रहा, तो बंद करना ये चूतिया. आप क्या मचा रखा है तूने यार? तो बंद करना, को ढंग की बातें कर यार प्लीज. नहीं अरुण भाई वो बदल गए हैं. ये रोज जिम जाते हैं. अब इनका डॉलर देखो कितना मोटा हो गया है. अब इनका बाइसेप देखो, इनका ट्राइसेप देखो. अरे अब इनकी जांघें देखो यार. जांघें. The moment he says Jange, cameraman cuts it to Jange, like this part on national television. I am watching Mohammad Shami's Jange. मैंने टीवी में सिर्फ 2 ही जांगे देखे, मोहम्मद शामी की और दुशासन की. And then he starts explaining his run. नहीं मोहम्मद शामी दौड़ रहे, मोहम्मद शामी दौड़ रहे, मोहम्मद शामी की जांगे हिल रही है, जांगे हिल रही है. And I'm like, dude, इसकी जांगे हिल रही है, बाकी सामान भी हिल रहा है, तो कैमरा हटा पहले वहां से. तो कैमरा हटा. मोहम्मद शामी ढीला अच्छा पहना यार. नहीं, मोहम्मद शामी ने पटक के बोल डाला. मुकल्लम ने करा प्लेड. गाइस, मुकल्लम इज ब्रेंडन मैककलम फ्रॉम न्यूजीलैंड. सॉरी. पहले आप मुझे बताएं, आप शुरू में किया क्या से क्यों? आपको सीरियसली पूछना चाहिए. आप मजाक नहीं उड़ा सकते. नहीं, मजाक नहीं, कोशिश करिए पाकिस्तान की टीम उड़ा सकते. आप ऐसा कर नहीं सकते.
देखो दोस्तों, आई मस्ट टेल यू दैट यू नो आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। और मैं देखता हूँ ना आजकल के नए ज़माने के बाथरूम्स, तो मेरा दिल रोता है। हाँ, क्योंकि आजकल बाथरूम में साबुन ही नहीं है। सच में, आप सब लोग मुझे घूर करके ऐसे मत देखो मिलके कि भैया कहाँ रह रहे तुम। है साबुन है सर, साबुन है, पर वो वाला साबुन नहीं है ना, भट्टा। वो याद है सॉलिड लक्स लाइफ बॉय? रिमेंबर लाइफ बॉय? सर पे मारो सर ही फट जाए। रिमेंबर लाइफ बॉय जो भय के नाले में क्या रोको उसे। और फिर मम्मी कह रही हाथ में थैली पहन के बाहर निकाल। मुझे पता है हाथ में थैली वाला भी सबको समझ नहीं आता, पर जिसको समझ आता है दैट पर्सन हैज ग्रोन फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। क्योंकि उसने हाथ में थैली पहन के, नाले के पास सर लगा के, नीचे लेट के हाथ डाल के, मम्मी नहीं निकल रहा। अभी है बाथरूम में साबुन है, बट इट इज ओनली लिक्विड फॉर्म। इट्स ओनली लिक्विड फॉर्म। नहाने बैठो, आपने नोटिस करा है पहले एक साबुन से पूरा शरीर रगड़ देते थे इंसान, अब साला शरीर का हर अंग धोने के लिए नया डब्बा आ गया। देखिए नहाने बैठो 4 डब्बे लेके बैठना पड़ता है। एंड आई क्या क्या धो में अलग अलग। मैं नहाने बैठो डब्बे खोलने बैठो यहाँ पे। देखिए आपने मुंह धोने का फेस वॉश, सर अलग, छाती अलग, ढूंढी अलग धो लो अपनी। रियली दिस प्रोडक्ट इन द मार्केट, मार्केट में ये प्रोडक्ट आ गया, ये अंडरआर्म्स गोरे कर लो। हाँ भाई ये आ गया, ये गोरे कर लो। ये किसका शौक है गोरे करने का? किस दिन आपने सोचा आज मैं ये गोरे करके जाऊंगा? ये कौन गोरे कर रहा है? ये कौन सा बंदा है जिसको मीटिंग में जाकर के और भाई साहब बढ़िया आओ डील डन, डील हो जाए आज ऐसे ही बगल से बगल लड़ाएंगे तभी मजा आएगा। इसके बाद ही चेक काटूंगा, आ जाओ इधर लड़ाओ। ये कौन कर रहा है यार? ये ज़्यादा ऊपर तो नहीं हो गया इस वाले में? थोड़ा टी शर्ट ऊपर जाती है, नज़ारे आ जाते हैं। आ गए, सॉरी मैम सॉरी, अब तो आपको देखना ही पड़ा, अब तो याद रहेगा, भूलोगे नहीं कभी। और मेरी ना हल्की तोंद आ गई है, पता है, हल्की तोंद आ गई है, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं आई है, पर ट्रांसफॉर्मेशन वाली नहीं आई है, पर इतनी आई है कि मतलब मेरी जितनी भी चड्डियाँ हैं ना उनके स्ट्रैप बीच में से बुड़ चुके हैं। रिलेटेबल कंटेंट, रिलेटेबल मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक जॉकी लिखा, सारे जॉकी के हालात ये हो रखे होता नहीं, जॉकी के बीच में एकदम ऐसे नहीं लगता काट दिया किसी ने, चड्डी पूरी मुड़ी रहती है। नहीं, हर बार बाथरूम में जाओ नई चीज़ कैसे आ जाती है यार। एक वो आ गया बाथरूम में, आप लोगों ने देखा है बम क्रीम। यू गाइस नो बम क्रीम? कितने लोगों को नहीं पता? काफियों को नहीं पता होगा, आई एम अज्यूमिंग। नाम से तो समझ आ ही रहा होगा ना, अगर बम क्रीम है तो मुंह पे लगाने की तो नहीं है, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना। किस दिन एवोल्यूशन में इंसान ने ये बात सोची थी कि हमारे चूतड़ों को भी क्रीम की जरूरत है? किस दिन इंसान ने बात सोची कि एक दिन मनुष्य बाथरूम में नंगा खड़ा होके हाथ में क्रीम लेके अपने पिछवाड़ा पे ये करेगा, ये इस चीज़ के लिए जन्म हुआ है हमारा, ये करें हम। इस साइड नहीं दिखाई दिया, ये देखो ये हो रहा है। ये किसने सोचा खुद को लगे वुगली वुगली वुश? नहीं, अलग होता है भाई, सबकी ऐस अलग है ना, सबकी, किसी की नॉर्मल है, किसी की हेयरी है भाई, भंवर अलग बन रहा है। हर बार बाथरूम में नई चीज, मेरा क्वेश्चन है हर बार नई चीज कैसे आ सकती है? एक वो आगे देखा आप लोगों ने बाथरूम में लूफा। यू गाइस नो व्हाट इज लूफा? किस किस को नहीं पता? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। भाई को नहीं पता, भाई को नहीं पता, भाई को शाबाश शाबाश शाबाश। और ऐसी बात नहीं है आप चारों ने कभी लूफा देखा नहीं है। अब आपके घर में ही है इसलिए सुना है आपने। वो देखा है बाथरूम में टंगा होता है नलके पे झामा, वो नहीं होता फूल सा, वो नहीं होता शरीर का स्कॉच ब्राइट। देखा नहीं? अरे ये देखा, ये दिस इज ऑल्सो मैजिक शो। भाई उसने पिछवाड़े से कबूतर निकाल दिया भाई, कबूतर था कि तोता था, हरे रंग का तोता लेके आया। ये पता 3 साल से मेरे घर पे, मुझे पता ही नहीं क्या है, कसम से मुझे नहीं पता। मुझे लगता था मेरी वाइफ को घर डेकोरेट करने का शौक है, तो उनने बाथरूम का नलका भी सजा दिया। नलके पर टंगा रहता ना, सही है। तो एक दिन मेरी नज़र पड़ी उसके ऊपर, मतलब नज़र तो रोज़ पड़ती थी, आज मेरे कॉन्शियस माइंड में आया कि है क्या चीज़। साला मैंने देखा जाके रफ सा नेट वाला टेक्सचर होता है, नेट वाला। तो मुझे लगा शायद मेरी वाइफ लाई होगी पैर की एड़ी साफ़ करने के लिए, क्योंकि पहले में रहते पुराने वाले घरों में, सबको याद है, अपने स्ट्रगल वाले घर याद है सबको। रिमेंबर खुरदुरी ज़मीन, रिमेंबर यहीं रगड़ो खत्म कर। यहाँ मंगल बाजार में वो आता था, वो नहीं पत्थर रगड़ लो यहाँ लेकर। अब सब लोगों ने टाइलें लगवा ली हैं, तो मुझे लगा शायद मेरी वाइफ लाई पैर की एड़ी साफ़ करने के लिए।
अगले दिन सर पहली बार मैंने लूफा से पैर की एड़ी साफ भी करी, और कसम से इतनी ज़्यादा सुंदर एड़ी साफ आई, मज़ा आ गया, मन करा एड़ी काट के मुंह पर लगा दूँ। इतनी ब्यूटीफुल, एकदम क्रैक क्रीम वाली एड़ी हो गई, सुंदर एकदम। तो अब मैं लूफा से 3 महीने से पैर की एड़ी साफ कर रहा हूँ। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस जोक। अब शुरू होगा। तो उस दिन भाई बाथरूम में सर वही रेगुलर अपना नंगा बैठ के नहा रहा था और लूफा से एड़ी चमका रहा था। दुनिया जहान भूल के लगा पड़ा हूँ आज। भाई पता नहीं मेरे कौन से जन्म के पाप निकल के आ गए, मेरे से क्या गलती हो गई। सर मैं ना दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया। भाई झटके से दरवाजा खोल के मेरी बीवी घुस गई। पहले तो मेरी फटी, इसका व्लॉग तो नहीं बना रही, इसका व्लॉग ना बन जाए यार। हे गाइस देखो नंगा पकड़ा गया है, देखो दोस्तों जूम इन करके भी कम दिखाई दे रहा है, देखो जूम करके भी कम है, देखो दोस्तों यार। उसके हाथ में कैमरा कुछ भी बोल सकती है यार। और सर एक तो इतने गंदे वल्नरेबल हालात में नंगा पकड़ा गया हो ना, पता मनुष्य को भी नंगा पकड़ा जाना नहीं चाहिए सर। नंगे होना लगे उसमें दोनों कंसेंट है, पकड़ा जाना अकेला पकड़ा जाता है, दूसरों को तो झटका मिलता है क्या देख लिया है भाई। वो इतना गंद तो गंदे थे, वैसे जमीन में बैठा हूँ पूरी तोंद इकट्ठी हो रखी। होता नहीं कई बार आप नीचे बैठो तो पूरा आटा साथ में नहीं आ जाता। अरे कहाँ गया है, एक होता नहीं पूरा ही एकदम ऐसे पूरा आटा ऐसे पूरा लग रहा गोंदू खुद ही गाली दे रहे, मोमो ज़्यादा खा गया, चापे ज़्यादा हो गई। तो भाई मेरी बीवी मुझे देख के फुल शॉक्ड, फुल, क्योंकि हमने कभी एक दूसरे को देखा नहीं है ना जलती लाइटों में, मतलब कभी कभी तो देखा ही है, पर नॉर्मली इंडियन कपल्स एक दूसरे को देखते थोड़ा ना जलती लाइटों में। हमारे में है ही नहीं वो कल्चर देखने वाला, और देख के करे भी शरीर के हालात कैसे कर रखे हैं। क्या करेंगे, आओ तोन से तोन टकराएं, आओ पेट से खेलेंगे, आओ मिलो सीलो सालो। भाई वो मेरी वाइफ मुझे देख के फुल शॉक्ड, फुल कह रही क्या है ये। और भाई जैसे ही उसने मुझे बोला क्या है ये, मुझे ना स्टार्टिंग में रियलाइज नहीं हुआ कि लूफा की बात कर रही है, क्योंकि मैं तो नंगा बैठा हूँ। और भाई साहब जब इतना पानी पड़ता है तो लड़का सिकुड़ जाता है, भाई साहब आपको पता है, कोई शर्माने की बात नहीं है। तो मुझे लगा किसी और चीज़ के बारे में बोल रही है। तो जैसे ही उसने मुझे बोला क्या है ये, मैं फुल डिफेंसिव, मैंने क्या यही है और क्या है। तो कह रही तू ये लूफा से क्या कर रहा है। मैं कहा लूफा क्या होता है। कह रही ये जो तेरे हाथ में पड़ा है। मैं कहा ये तो झामा है, तो झामा है, इसे तो मैं रोज साफ कर रहा हूँ। भाई मैंने नहीं बताया सर मैं 3 महीने से क्या कर रहा हूँ उसके साथ, मैंने नहीं बताया सर 3 महीने से क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो हर रोज लगी बड़ी मेरे पास आके शावर जेल डाल के लल्ला। मैंने नहीं बताया सर मैं 3 महीने से एड़ी साफ कर रहा हूँ, और 2 बार तो वॉश बेसिन भी चमका दिया था। एंड जस्ट टू लेट यू नो, जिसको नहीं पता दोस्तों, सर आपको नहीं पता, उधर आपको नहीं पता, ये नेट वाला लूफा होता है, नेट वाला, ठीक है। ऐसा सिमिलर प्रोडक्ट है किचन में भी होता है लोहे का, वो लूफा नहीं है, उस पर शावर जेल डाल के नहीं रगड़ना, नहीं तो पूरी जिंदगी एयरपोर्ट पे मेटल डिटेक्टर बजेगा, पी पी पी। मेटल है अंदर ही चला गया सर, अंदर ही रहता है। हर बार बात, मेरा क्वेश्चन है कि हर बार बाथरूम में नई चीज़ कैसे आ जाती है, हर बार बाथरूम में नई चीज़ आ जाती है। एक वो देखा आप लोगों ने वी वॉश, यू गाइस नो व्हाट इज वी वॉश। किस किस को नहीं पता हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, शाबाश मर्द जात, शाबाश शाबाश, हाथ उठाओ भाई, शर्माने की बात नहीं, मैम बताना नहीं इसे, हाथ उठाओ भाई। यू आर दी ऑनेस्ट पर्सन, आई एम टेलिंग यू। कम से कम 10 और बैठे हैं, बताओ किस किस को नहीं, बाकी सबको पता है। सर बताओ नहीं तो आंखों में देख के पकड़ूंगा। इसकी मुंडी ऐसे रही। वेरी जेनरिक इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइस, ओके। फर्स्टली वी वॉश डज नॉट मीन दैट वी ऑल वॉश टुगेदर, ठीक है। कल कहीं 4 दोस्तों को बुला लिया है, चलो भाई टूटी खोलो सारे भाई हाथ धोएंगे आज। वी वॉश इज बेसिकली फॉर विमेन, इट्स फॉर इंटीमेट हाइजीन, इट्स फॉर वजाइनल हाइजीन। समझ रहे, लड़कियों को धोने का लगा रहा है और लड़कों को कुछ नहीं। हम लोग जिंदगी भर साबुन रगड़ते रहेंगे क्या, यही है क्या लाइफ बॉय तंदुरुस्ती की रक्षा। और यार मैं पिछली बार 4 डब्बे लेके नहाने बैठा होता यार, मैं वो नहाते नहाते एक डब्बे में कंफ्यूज हो गया, शायद मैंने उस डब्बे पे ध्यान नहीं दिया, और यार मैंने गलती से वी वॉश से मुंह धो दिया यार, मेरा पूरा मूड ही खराब हो गया यार। मैं कहा इज दिस द पनिशमेंट।
Is this the punishment to never go down in my life? मुझे पता आधी जनता को समझ ही नहीं आया, नहीं चमका। ये दोनों लड़कों के तो चेहरे पे है। क्या भैया, क्या गो डाउन? क्यों हंस रहे हैं ये लोग? कुछ वेयर हाउस की बात हो रही है क्या? लेकिन दोनों को समझ नहीं आया। और वो पीछे अंधेरे में मैंने कपल देखा, उधर कपल, वो लड़की ने लड़के को बोला तुम्हें तो पता। अरे मेरे चमन चटोरे, मैं क्या लगा यहाँ पे चाट पापड़ी की बातें होंगी क्या? ये वाला तो बहुत ही गंदा है यार, ये तो नहीं बोलना चाहिए किसी को चमन चटोरा। And you know what is the worst thing about this joke? That now you will remember me. In one of the most weird moments of your life. Now I will be there. Now it is always going to be a threesome. और एकदम पता कहाँ पे जाके याद, कहाँ पे एकदम पता कहाँ जाके याद आऊँगा, जब एकदम माहौल में, क्या मैं चमन चटोरा? हाँ तू ही चमन चटोरा। आपको दिख नहीं रहा, जो मुझे यहाँ से दिख रहा है, इसने थम्स अप यहाँ लगा रखी है। ये यहाँ पे क्या एडवेंचर करना है आपको यार? यहाँ फंसा के बैठा हुआ है थम्स अप, और यहाँ पे फोन घुसाया हुआ है भाई वाइब्रेशन अगर हो गई ना और कहीं आपको अच्छा लग गया तो आप डाउट में चले जाओगे यार। थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी करेंगे, शो में चलेगा आप लोगों को? हैं? ठीक है मैम। कोई आप आए हो एक्साइटेड आज घर से? आप फर्स्ट टाइम स्टैंड अप देख रहे हो, पहले आपने देखा है किसी का? फर्स्ट टाइम है। ओ क्यों, तो आज आपका कैसे कैसे मूड बन गया कि चलो आज देखते हैं स्टैंड अप? वेले बैठे थे। ये भी बोल सकते थे कि आपके वीडियो अच्छे लगते हैं, तो लोग सोचा कि लाइव एक्सपीरियंस देख लें। खाली थे जी, गौरव खाली थे। आप आए हो कि ये इसके साथ आए हो? हाँ। ये कौन है? ये जसवाल। अरे तुम्हारा रिश्ता क्या है इससे? He is your boyfriend. भाई डर क्यों रहे हो आप? ऐसे पैनिक मत करो, रिलैक्स करो। I am not one of those comedians जो कि उल्टा बोलता है। I'll just have a nice conversation with, if at all you want. Can I talk to you guys? What's your name? जनक। अरे महाराजा जनक। आपका नाम? ऋतु। ऋतु मतलब? मतलब ऋतु सीजन होता है? सीजन को हिंदी में रुत बोलते हैं। ऋतु। पता था आपको ऋतु होता है? रुत तो कुछ नहीं है। ऋतु तो चलो फिर भी मैं कंफ्यूज था कि सुना है कि नहीं सुना। रुत नहीं होता, रुत भी होता है। ऋतु होता है ना, रुत भी होता है। हाँ मतलब ऐसा ही कुछ होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए। मैं ही समझ लूँ। सही है भाई, ये अलग ही लकड़ फंसाने आई है मेरे। ये वाला माल चाहिए मेरे को। ये वाला माल चाहिए जो मैडम फूक के आए। अच्छा ये बोलना। भाई मुझे कुछ और ही लगा। मुझे लगा भाई इतना बैंड्रा में इतना कंफर्टेबल कैसे हो गया? भाई कह रहा है ये वाला माल मारो। भाई क्या बोल रहा? मेरी फट ही गई, क्या बोला है ये? इसके साथ ऋतु आई है, ऋतु सारे सीजन्स भूल गई। मैं ऋतु कह रही क्या बोल रहे हो? व्हाट इज दिस लैंग्वेज यू आर यूजिंग? कुछ माल भूख की नहीं है, शी इज जस्ट हैप्पी। सही है मैम। कब से हो जैसवाल और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? हैं? ऑलमोस्ट 2 years। आप भाई कंफर्टेबल हो कि नहीं हो बताओ? मैं दोस्त हूँ यार आपका। आपको कौन ये लेके आई है क्या आपको? है ना, होता है। इसलिए ज़्यादा हंस रही है। इसलिए ज़्यादा हंस रही हैं। कैसे मिले आप दोनों? फ्रेंड्स गैदरिंग है। फ्रेंड्स की गैदरिंग में।
डू यू स्टे इन मुंबई और यू आर हेयर? No, I'm here for 2-3 days. 3 दिन के लिए आप इधर, उसमें से भी आप 1 दिन चुन के इधर ही पहुंच गए। भाई ने कितनी उम्मीदों से बुलाया था, मॉल वॉल बने। आपको क्या लग रहा है, इसका इधर आके सबके भीड़ में बैठने का मन है? चलो भाई 3 दिन का विंडो है, आओ भाई खत्म करो। वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। क्या क्वालिटीज अच्छी है, 2-3 क्वालिटी बताओ। Very sweet, Very very sweet. humble, and completely opposite to me. He's very calm. वो तो हमें पता चल गया है यहाँ पे सबको। तीसरा वाला तो आपका अनसेड ही था यहाँ पे, सभी को पता चल गया है। हाँ फिर He's the best what I can have. Like अरे भैया, अरे भाई गौर, जायसवाल भाई क्या नशे करा के लाए हो भाई? इतना प्यार में पड़ी हुई है लड़की एकदम, इतने प्यार में मिलती है कोई नहीं। मैं बातें करता हूँ ठीक, गौरव कोई था ही नहीं, यही है अब क्या। 3 साल से चल रहा है, हमारा चल रहा है। इनने भाई 4-5 क्वालिटी बैठे बैठे गिना दी, पता है? जायसवाल भाई आप क्वालिटी बताओ आप 3। She's sweet. शी इज स्वीट, She's caring. शी इज केयरिंग, And she's punctual. शी इज Perfect with timings. परफेक्ट विद टाइमिंग। जैसल भाई फैमिली फ्रेंडली बातें करो यहाँ पे। कितनी गंदी बातें करके तुम्हारा खत्म। कह रही ही इज वेरी केयरिंग एंड ही इज वेरी काम। इसने तो भाई घर के राज खोल दिए पूरे। और अ परफेक्ट विद टाइमिंग। जिस दिन मेरा 2 मिनट, इनका 2 मिनट। जिस दिन मेरा 10 मिनट, इनका भी 10 मिनट। नहीं सही है यार, नाइस नाइस कपल यार। ऐसे कपल्स नहीं मिलते आजकल इतने प्यार वाले। नहीं ये देखो, जैसे कि आप दोनों कपल हो नहीं हो, सच बता दो। चल रही है बात, चल रही है ऐसा टाइप। टेल मी ऋतु, टेल मी, नो टेल मी, यू गाइस आर कपल ना? no. यू आर, मे बी यू डोंट नो। नहीं ये देखो, ये कपल है, मान के राजी नहीं है। तुझे पता ये है, इन पर तू है। किसको नहीं पता? अरे और भाई ये तो पूरी एक्सट्रोवर्ट है। ऋतु की फटकी क्या बोल रही है? What is this girl saying? मुझे ना इन दोनों को देख के याद आ गई, मेरे कॉलेज में ना पर 2 लड़कियों की लड़ाई हो गई थी। कैट फाइट हुई थी, प्रॉपर कैट फाइट। तो एक तो पूरी भाई एकदम वो पंजाब से थी, पता है, पूरी एकदम पंजाब की नहीं तो जटनी, और दूसरी हमारे दिल्ली की थी, डीपीएस वगैरह की। तो दोनों में कुछ किसी बात पे लड़ाई। भाई डीपीएस वाली व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, पंजाब वाली ने खींच के चाटा, चल कह रही कुत्ती तेरे को मार मार के जिला दूंगी मैं। डीपीएस वाली कह रही व्हाट इज दिस बिच इज सेइंग समथिंग टू मी, दिस बिच इज सेइंग समथिंग टू। ऐसी फीलिंग आ गई मेरे को एकदम। ऐसे नहीं हो आप भी कलेशन हो हैं? हाँ तो कैट फाइट हो जाएगा, मजा आ जाएगा, पता है। सबका एंटरटेनमेंट भाई यही है, शो यही बढ़िया है। कॉमेडी वॉमेडी बंद करो, ये सब बढ़िया है। ठीक है यार, ये सब तो करते रहेंगे, थोड़ा जोक सुनाओ आप लोगों को, चलेगा? नहीं ये सब तो क्या है यार, ये सब बातें होती रहेंगी। मैं यू नो आई एम क्या था जोक ही भूल गया। इतना हंसी मजाक में घुस गया, चुटकुला ही भूल गया भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर से देखो मेरी बात, अभी तक तो, अब देखो मेरी बात सुनो, अभी तक तो मैंने कुछ बोला नहीं था, है ना? तो अब अगर आपने मेरे को इंटरप्ट करा नो। तो मैं एक राज खोलने वाला हूँ जायसवाल भाई का। और जायसवाल भाई वो राज मुझे दिख रहा है यहाँ से, मैं आपको क्या बताऊँ। जो जायसवाल भाई ने इनके गर्दन पे कामिंग नेचर दिखाया है ना, जायसवाल की फटकी। अरे भाई बाल आगे क्यों? करेक्ट विद टाइमिंग। अब मैं क्या करूं, मेरी नजर गई तो मैं क्या करूं? इट्स नॉट माय फॉल्ट, है ना? एकदम पूरा मैं डिस्ट्रैक्ट ही हो गया, मेरी आंखों में जायसवाल की पूरी इमेज ही चेंज हो गई, पता है? मुझे ना बड़ा सीधा सा लड़का है, कुछ नहीं भाई, जल्दी आस्ते आस्ते उसके बाल पीछे कर रहा है। भाई जायसवाल ये तुम्हारा ही है क्या? अरे बाप रे बाप, भगवान क्या दिखा दिया। मैं गंदा इंसान हूँ।
सोच लो बेचारा लड़का घर से वरमाला लेके निकला था। ऑफिस लेके गया है। तुम्हारे घर पे फोन करके बताऊं? अंकल जायसवाल जी से रात घूम रही है आपकी बेटी, पूरी गर्दन लाल करके बैठ गई। हक दिया मेरे चुटकुले पे बहन पूरा। यार भाई बर्बाद हो गई है तो बर्बाद। क्या हुआ? हाँ हाँ पूरा घर का ही माहौल तो है ये। फैमिली फंक्शन ही है क्या ये? और जायसवाल भाई आपने क्या काटा है भाई कसम से यार। भाई पूरा भाई थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए यार, लड़की को बार बार घूमना है हर जगह। भाई आपने देखा, आपने आपको दिखा नहीं? मेरे को ये क्या कर दिया भाई? एक होता है लाल, इसने कॉपर कलर कर दिया, कॉपर ही कर दिया भाई पूरा। उसका बस अब 15 सेकंड हुआ, वो बाहर ही आ रही थी स्किन बेचारी की एकदम। आगे वापस बताना नहीं, चुप। मैंने कुछ नहीं बोला। होता है यूथ में, कितने साल के छोटे छोटे लग रहा है आप लोग? 22-23 साल? 24 ना? हाँ भाई इसमें तो एकदम, इसमें तो ऐसे होते ना हार्मोन्स, वहां से बंदा भर के निकलता, बस पकड़ लिया है तैयार हो जाओ। कब जाना है? कल चले जाए। कल मत जाओ। कब पेरेंट्स के याद रहते हो? पेरेंट्स के याद नहीं रहते ना? हाँ फिर जाओ जाओ। वरना 2 दिन चुन्नी ऐसे बांध के, टेम्परेचर चल रहा है 42 डिग्री है। मुझे तो ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, ठंड। आपको सही डिसीजन लगा कॉमेडी शो में आना? मज़ा आया ना? आता है मज़ा यार कॉमेडी शो में। एनीवेज, आप लोग जीवन साथी से मिले कैसे? आप कितने से मिले थे? जीवन साथी के थ्रू फर्स्ट इनसे मिले। क्या नाम है आपका? भाविका। भाई आप? प्रणय। भाविका आप कितने से मिले? फर्स्ट। तुम में से एक ने तो झूठ बोला है। या फिर दोनों नहीं। एंड नाउ दे हैव टू कंटिन्यू इट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। कितनी डेट्स पे गए थे आप लोग? हाँ डेट्स ही होती हैं वो भी। ओके। हर डेट का मतलब ये नहीं होता निशान लेके आना होता है, ठीक है? इसका डेट, व्हाट इज डेट गौरव? डेट तो वही जबकि कहा जाए किसके मैं नाखून मारूं। वायलेंस के बिना कैसा डेट गौरव? Of late, a lot of Bollywood movies are just talking about one theme. That you should follow your passion. You should do what you like. But I think some people should not do what they like. नहीं सबके लिए नहीं होता यार पैशन मतलब. Some people should not do. You know, someone like Honey Singh. Because Honey Singh followed his passion and made a song Volume 1. ये देखो सिंगल ठरकी को सब पता है क्या? तो सब नॉलेज है वॉल्यूम 1 में क्या हुआ था. इट वॉज सच अ वर्स्ट सॉन्ग. लाइक आई टेल यू उसमें क्या हुआ था. बेसिकली द सॉन्ग वेंट लाइक कहते पचिया पर नाने तेरी मारी साढ़े लन ने भी की है तैयारी. फॉर पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड पंजाबी, it basically means 25 villages had sex with you and I am ready to be the 26th one. This is like taking sexism to Mount Everest. मतलब ये गाना सुनकर तिहाड़ जेल के कैदी नहीं बोले भाई कितने गंदे गाने बना रहा है यार तू. ये गाना सुन के आसाराम बाबू की थोड़ी फट गई, भैंचो तो मेरे से भी हरामी निकला यार. तो बहुत हरामी आदमी है. And all these movies show you the story of one guy who follows his passion and makes it big. For some reason this one guy is always Ranbir Kapoor. किसी और का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है.
बाकी सबके करियर खराब ही हो रहे हैं. But that is just one guy, right? That is just one guy. I can give you thousands of examples around you guys, wherein people did not follow their passion, and that is the only reason they're successful. To know these kind of people, you should go to karaoke nights. Where normal people come and give you a glimpse of their talent. Tarun Srivastava, manager with Infosys, also has a passion for singing. Once Tarun is done with the singing, वाले शुक्र है इसने नौकरी नहीं छोड़ी यार. अच्छा है रोज ऑफिस जा रहा है, इसका पूरा खानदान खाना तो खा रहा है कम से कम. वरना इसकी पूरी फैमिली सड़कों पर होती. नहीं, because Summer of '69 from Tarun was Sorrow of 2016 for audience. हो रहा है ऐसा हर, और nobody has a passion of becoming doctor, engineer नहीं. सबको डांसर बनना है, सिंगर बनना है, कूल चीजें करनी है. And I understand these passions, you know, dancer, singer, I understand. But nowadays there's a new passion in market. Traveler. Traveling is a passion. What is the fucking skill set that you require to become a traveler? तुझे सिर्फ IRCTC चलाना आना चाहिए, that's it. अगर तू एडवेंचर ट्रैवलर तो तू तत्काल पे अच्छा है. नहीं, ये एडवेंचर, कुछ लोग कहते हैं ना आज हमें एडवेंचर ट्रैवल बहुत पसंद है. यही वही लोग होते हैं जब टैक्सी वाला स्पीड 80 के ऊपर लेके जाता है ना, तो पीछे वाली सीट से कहते हैं भैया प्लीज स्लो चलाइए. नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल पुटिंग अप देयर फेसबुक स्टेटसेस, लव टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस. मैंने कौन है तू, कोलंबस है कि वास्को दा गामा है, कौन है? और तू जहाज लेके निकला, तू क्या मसाले ढूंढने निकला था क्या? दुनिया में सबके पास सब कुछ, सबको पता है यार. मतलब अभी गूगल मैप्स है यार दुनिया में. मतलब मैं खड़े होकर मूत्र रहा था, कोई देख लेता ऊपर से. सैटेलाइट से आ रहे हो, देखो सुसु कर रहा है ऊपर. हाँ, कुछ भी हो रहा है दुनिया में, बता रहा हूँ. But I think 20 years down the line, this will all change. You know, this will all change. This will all become mainstream. Comedy, dancing, singing, ये सब mainstream हो जाएगा. Offbeat होएगा डॉक्टर और इंजीनियर. Scoop पे आर्टिकल आएगा. Meet Rahul. Rahul comes from the family of passion followers. राहुल की मम्मी दिन भर सड़कों पे बीट बॉक्सिंग करा करती थी. राहुल के पापा मोहल्ले में के सबसे अननोन रैपर हैं. इनको मोहल्ले में छोटे एमिनेम के नाम से भी जाना जाता है. राहुल के दादा दादी आज भी गले में कूल का पेंडेंट पहन के घूमते हैं. But Rahul had other plans. Rahul became engineer. Rahul, you want to say something? Yeah, I would love to say no. You know, I could have also followed my passion, but unlike my parents, I also wanted to earn some money. अभी इन लोगों का पैशन फॉलो करा रहा हूं मैं. और इन सब पिक्चर में ना आपको जिस भी पैशन फॉलोइंग वाली मूवी होती है, इनमें आपको एक और चीज दिखाते हैं. आपकी लाइफ में जो सबसे बड़े विलेन है वो आपके माँ बाप है, क्योंकि वो लोग आपको पैशन फॉलो नहीं करने दे रहे. I was watching this movie Tamasha with my parents. My father lost it in the middle of the movie. मैं बोला कि क्या बदतमीजी है यार, ये कैसे बात कर रहा है अपने बाप से? तू हम लोगों से बदला ले रहा है ना, हम लोगों ने तुझे बागबान दिखाई थी. And I was like, नहीं पापा, अगर मुझे बदला लेना था, मैं को उड़ान दिखाता. आप एचआर वाले तो पहले एनालाइज करते हो, क्यों बताया आप एचआर वाले हो? Where do you see yourself 5 years down the line, sir? जैसे अभी तो मैं फुल टाइम स्टैंड अप कर रहा हूँ, पहले मैं जॉब करता था. और जब मैं जॉब करता था तो मैंने कंपनी ज्वाइन करी, और पहले ही दिन उस कंपनी की एचआर बोलती कि गौरव, अपनी सैलरी किसी को मत बताना, ये एक इंटेग्रिटी इशू है. मैं को सुनो, और जिस सैलरी पे मैंने ज्वाइन करा है, मेरे में कोई इंटेग्रिटी बची नहीं है. और मेरा छोड़ो, तुम मत बता देना किसी को, समझ गई ना? क्योंकि ये तनख्वाह बताने लायक भी नहीं है. और सैलरी इंटेग्रिटी इशू उसके लिए होता है जिसकी तनख्वाह कम है, उसके लिए प्रॉब्लम वाला इशू है. जिसकी ज्यादा है उसके लिए तो प्राइड इशू है ना. उसको ऐसा बोलो, उसको मत बोलो इंटेग्रिटी, उसको बोलो किसी को बताना मत, नजर लग जाएगी और अगला प्रेजेंट नहीं मिलने वाला. तो मैं सच बता रहा हूँ.
मैंने देखा है जो कंपनी में सबसे जूनियर एम्प्लॉयज होते हैं ना, सबसे कम तनख्वाह वाले, इनको सब टॉप मैनेजमेंट की सैलरी पता है। इनको सब पता है सीईओ सीएफओ कितना कमा रहे हैं। सच में इनका फेवरेट पास टाइम यही होता है। ये लोग डिस्कस करते बैठ के, भाई तुझे पता है ये सीईओ ये साल का 4 करोड़ ले रहा है, पता है तुझे? मैं कहा नहीं, मुझे पता है तू साल का 4 लाख ले रहा है, वो भी इंसेंटिव मिला के। इसको थोड़ा बढ़ाने पे काम करना प्लीज। और पता है ये लोग, इनका इतना टाइम होता है, फिर ये लोग फुल सीईओ की सैलरी का ब्रेकअप करते हैं यार, मंथ बाय मंथ ब्रेकअप कर देंगे कि भाई साल का 4 करोड़ ले रहा है, इस हिसाब से ना महीने का 30-35 लाख लेता होगा इन हैंड। पता है कितना होता है? इतने में ना वो हर महीने खोपोली में एक नया 1 BHK खरीद सकता है। खोपोली मतलब दिल्ली का ग्रेटर नोएडा, अगर कोई इधर से। एंड आई एम लाइक, इसकी इतनी छोटी सोच, ये 30 लाख रुपए महीने पे भी खोपोली जा रहा है। इसको लग नहीं रहा है टोल से पहले घर ले पाएगा जिंदगी में। ये हर बात पे टोल पार कर रहा है यार। और मैंने देख लिया भाई सब लोग ना आजकल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बाय प्रॉपर्टी नाउ डेज इन ऑल द मेन एरियाज, दे बिकम कॉस्टली। तो ये बैंड्रा खार में लेना मुश्किल हो गया। जैसे अगर आपको खार में या बैंडर में अगर आपको घर लेना है तो उसके लिए आपको बैंड्रा का एक और घर बेचना भी पड़ेगा। ऐसे नहीं ले सकते नए पैसे से। तो इसलिए लोग चले जाते हैं बाहर, लोग जा रहे हैं दूर दूर कहीं, दे गो, दे कीप गोइंग। कहीं तो दूर रास्ते में बिल्डर ने लिख दिया लग्जरी फ्लैट। इन 40 lakhs। तो लोग ले लेते हैं दूर दूर जाके घर, एकदम दूर, पता नहीं कहाँ, इस उम्मीद में कि एक दिन आएगा हवाई अड्डा वहां पे। ले लेते हैं लोग। And you know, once people buy property in all the outskirt areas, they start making peace with their life. Then they start justifying that property purchase. देखा आपने? वो उनको पसंद आता है फिर वो अचानक से कि हमको तो बांद्रा पसंद ही नहीं है, थू। ये इतना ट्रैफिक, इतना हल्ला, छी। हमको यही पसंद है, खुला खुला, थोड़ी हरियाली रहे, आसपास थोड़ा जंगल रहे। घर आओ, लगे तो सही अपने घर आ रहे हैं, फिर एक दिन उस घर में से निकलता है तेंदुआ। फिर आंटी नहाते नहाते आधा पेटीकोट ऊपर करके बाहर भागती है कि बेटा घर में जानवर आ गया, बचा लो बेटा। एंड आई एम लाइक, आंटी तेंदुआ शिफ्ट नहीं हुआ था, उसका बैंड्रा यही है, वो यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा यहाँ से छोड़ के। बट यू नो, आई डोंट स्टे इन ऑल दीज आउटस्कर्ट एरियाज इन दिल्ली। आई एम फ्रॉम दिल्ली एक्चुअली। मैं ऐसे कोई बाहर के एरिया में नहीं रहता हूँ। आई स्टे इन वन ऑफ द मोस्ट पॉश लोकेलिटीज ऑफ दिल्ली। आई एम अ वेरी रिच एंड स्नॉबिश पर्सन। आई स्टे इन द क्वींस टाउन ऑफ फरीदाबाद। उसको एनसीआर ने भी अपनाने से मना कर दिया। मजाक नहीं, अगर टेबल पे साथ में बैठेंगे ना, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद की कोई इज्जत नहीं है। वो समझा रहे, अरे मैं भी तो तुम्हारे ही जैसा हूँ, मेरे अभी तो उतने ही मर्डर होते हैं, मैं अच्छा हूँ। फरीदाबाद, आप लोगों को पता नहीं है, पर फरीदाबाद के लोग पूरी दुनिया को समझा रहे हैं कि उनकी लोकेशन सेंट्रल है, कि हमारे घर से गुड़गांव भी पास है, हमारे घर से नोएडा भी पास है, हमारे घर से दिल्ली भी पास है। मैंने कहा तुम्हारे घर से मथुरा पास है। मेरा कोई मन नहीं था फरीदाबाद घर लेने का, वो मेरे को घर वालों ने दिलवा दिया। मतलब ऐसे नहीं कि पैसे दे दिया कि खरीद लो, ऐसे बोला कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि मेरे पापा को ब्रोकर ने चिपका दिया था। और अगर कोई मेरे बाप को आके एक बार बोल दे ना कपूर साहब, फिर तो वो लुटने को तैयार है, फिर वो सब दे देंगे उसी आदमी को, लो। नहीं मजाक नहीं, ब्रोकर ने बोल दिया कपूर साहब आज लगा दो फरीदाबाद में 50 लाख, 3 साल में 1.5 करोड़ का नहीं हो गया ना, तो 1.30 मैं दे के जाऊंगा आपको। पापा आए मेरे पास, कह रहे गौरव आज लगा दो 50 लाख, 3 साल में 1.5 करोड़ का नहीं हो गया ना, तो 1.20 मैं दे के जाऊंगा तुम्हें। मैंने कहा पापा वो ब्रोकर तो 1.30 बोला था, बेटा थोड़ा हम भी तो कमाएंगे, नहीं कमाएंगे, रिटायर आदमी को सोचना पड़ता है ये सब चीजें। तो ले लिया मैंने 50 लाख का 3 साल पहले।
तो अब 3 साल हो गए हैं और घर हो गया 32 लाख रुपए का। न रहने के रह गए ना बेचने के रह गए, पता नहीं क्या ही करे। हर चीज में रुपया, हर दवा का हर दुआ का रुपया, सस्ता वस्ता कुछ नहीं मिलता, हर वफा का हर ख्वाब का रुपया, ख्वाब का हर वफा का रुपया, रुपया 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 रुपया। हेलो जी, वेलकम टू न्यू वीडियो। लॉकडाउन के बाद पहला स्टैंड अप शो कर रहा था, उसका वीडियो निकाल के डाल रहे हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कर दो पहले, ठीक है? सब्सक्राइब कर दो, क्या जा रहा है तुम्हारा। चलो पहले बाकी के वीडियो देख लो, एंड में दोबारा मिलते हैं। एक सेकंड भाई, ये मैंने सैनिटाइजर कोरोना हटाने के लिए नहीं हट मारा है। ये जो मानिक ने जहर फैलाया ना यहाँ पे आकर के तुम्हें पता कितनी मुश्किल से पुलिस परमिशन मिली है इस वेन्यू की। माँ ये वो पुलिस पे 10 मिनट करके चला गया है। और ये राम मनोहर लोहिया में पुलिस वाले, इनका आना जाना लगा ही रहता है। सॉरी सर, सुन रहे हो तो तुम आ कैसे गए हो यार? मतलब अच्छी बात है आ गए हो, मैं चाहता था पर अंदर से थोड़ी थोड़ी फट नहीं रही। थोड़ा थोड़ा डर रहे हो ना? नहीं ठीक है। क्या नाम है आपका? थोड़े लोगों से बात करेंगे, चलेगा ना आप लोगों को? देखो इसमें तो गंदा ही बोलते तो कोई टेंशन नहीं। वीडियो अभी जाकर तो मास्क पहना, क्या पता चल रहा है। व्हाट अबाउट यू गाइस? साथ में आए आप लोग? चारों साथ में आ गए हो। कहाँ से आए हो? ईस्ट दिल्ली से? सही है यार, इतने पैसे कहाँ से आए? पैसा पड़ा है? ईस्ट दिल्ली कहाँ? ईस्ट दिल्ली में किधर से? गीता कॉलोनी। अरे कहाँ की ऑडियंस बन रही है? कोई आया जीके वीके से आया इधर? हाँ चलो ठीक है, फिर ठीक है, बैलेंस हो गया थोड़ा। भाई गीता कॉलोनी कैसे पहुंच गया वीडियो में? नहीं ठीक है, अच्छा गीता कॉलोनी भी अच्छा है। क्या नाम आपका? अभिषेक। क्या करते हो आप? स्टूडेंट हो? खत्म ही हो गई तो क्या हुआ? अब क्या करोगे फिर इसके बाद? अभी सोच रहे हो? खत्म होने का 1 साल सोचने में लगाया। पता है गीता कॉलोनी रहना है तू? सोचने का टाइम नहीं है, सक्सेसफुल होना जल्दी। आज माहौल ही नहीं बन पा रहा है। क्या करें? बातें करेंगे, गंदा बोलना पड़ेगा, मेरे को समझ आ गया। भाई साहब ने तो गेमिंग ही शुरू कर दी उधर। आप गेम पे ही चले गए? मैच देख रहे हैं? देखो क्या करते हो आप भाई? मेरे भाई हल्दीराम की फ्रेंचाइजी है। हल्दीराम की फ्रेंचाइजी है? ओ क्या हलवाई है कुल मिला के, और क्या? डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है मेरा, उसका पूरा। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर हो आप? अरे हम शो में बात करते हैं ऐसे। आप पहली आपने देखा पहले स्टैंड अप शो? देखा है लेकिन तुम्हारा नहीं देखा। मेरा नहीं देखा ना, तो मैं तो बात करता हूँ भाई साहब, मैं तो ऐसे निकालूंगा कंटेंट। जोक चल नहीं रहे, तू मैच देख रहा तो मैं क्या करूँ? नहीं भाई तेरी गलती नहीं है, तू अच्छा इंसान है, मैं क्या करूँ? मैं फंस रहा हूँ जो है। ठीक है भाई, क्या कर लो, अगला जो कर लो। मैच देखना है आपको? देखो मैच देखना है तो आप उधर ही हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपये की है। हाँ अरे मैं वापस दे दूंगा। मैं 600 दूंगा, ले 10 रुपये पर लेके जा। एक हल्दीराम का भुजिया का पैकेट खरीदो 10 वाला। यार एक बात बता, पर आलू भुजिया खा के डकार क्यों आती है इतनी? नॉर्मल भुजिया ठीक रहती है। मतलब ये फीडबैक हल्दीराम को दे दो मेरी तरफ से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है सही भाई, ऐसे मजाक नाराज तो नहीं रहना आप? ये मैं पूछता हूँ, नाराज तो हो ही रहे तू ऑब्वियसली यार। बहन कोई मेरे को ऐसा बोल, ये मास्क बोल तेरी मांग लो, मास्क के पीछे गाली दे रहा तू। भुजिया डाल दो तेरी गांड में, फिर तुझे पता चलेगा क्या होता है हल्दीराम। तब समझ आएगा आलू भुजिया और भी दर्द करती है। शादी ब्याह हो गया? नहीं कोई नहीं, कर ले बीकानेर वाली शादी कर ले। तुम्हें अलाउड है बीकानेर का? अगर कोई कंपटीशन ब्रांड का आगे शादी करना अलाउड है?
क्या खाते हो? शराब पीता हूँ तो ब्लू लेस खाता हूँ मैं। क्या खाते हो? अच्छा ब्लू लेज। अच्छा यू मीन मसाला मैजिक? ब्लू लेज दिल्ली में है, ब्लू लेज है भैया, ग्रीन वाला है नहीं भैया, रेड वाला नहीं, टमाटर अच्छा नहीं है ये। भाई साहब आप बहुत फोन देख रहे हो, छोड़ दो, फ्रंट रो पे सब नहीं चलेगा, अंदर फोन जेब में। ऐसा किसका कॉल आ रहा है? मैम तो साथ में बैठी है। कौन है? अरे फ्रेंड कौन होता है? ये फ्रेंड है, ये होते हैं फ्रेंड, ये देखो दिख रहे हैं। हंसी मजा आया, चला इतने मजा आया, मजा आया। ये कैसी फ्रेंडशिप है? कब से हो फ्रेंड? 2-3 महीने हुए। 2-3 महीने हो गए। कहाँ मिले? ऑफिस में। ऑफिस? कौन सा ऑफिस? ऑफिस का नाम नहीं बताता। ऑफिस का नाम नहीं बताओगे? मत बताओ। किसमें हो? बहुत गंदी कंपनी में काम करते हो क्या? गंदी मतलब गंदी वैसे गंदी नहीं, गंदे कामों वाली कंपनी। मेरे को भाई एक कंपनी पता है तुम्हें, एक ऐप है मार्केट में, जिसको नहीं पता, अगर किसी को पता है वो नहीं बताएगा, मुझे पता है। इट्स एन एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप। हाँ, उनकी कंपनी ने मेरे को अप्रोच करा एड्स करने के लिए। मैं कहा तेरी माँ की आँख, मैंने तो भाई मेल आती पहले बीवी को दिखा दी, मैंने कहा तू देख ले, मैंने कुछ नहीं करा, इन्होंने खुद भेजा है, मेरी गलती कुछ नहीं है। तो देख के कहती कह रही पैसा कितना दे रहे हैं? अरे जुदाई पिक्चर की श्रीदेवी, पैसा बताओ इस पे, बताओ ना किधर काम करते हो? अरे नहीं बता रहा। नहीं बता रहा? अरे भाई सीधा ही मना, नहीं बता रहा। पर करते क्या, काम क्या करते हो? टीम लीडर हूँ। टीम लीडर हो? काम क्या है? IBM। IBM? तो क्या हुआ? IBM बताने में क्या शर्मा रहा है ये? IBM गंदी, वो देखो गीता कॉलोनी का सपना है उधर जाने का। उसकी गली में कैब नहीं आ पा रही है, पता है? आप भी मैम IBM में हैं? सेम? आप भी टीम लीडर हो? ओह, जूनियर को। ओह, चलो आज तुम्हें कॉमेडी शो दिखा के लाऊं। क्या चल रहा है, तुम कर रहे हो डेट? सच बता दो, बता दो। अरे नहीं। नहीं भैया जैसे आपके ये। भैया जैसे है एकदम। हाँ बोलो, हाँ हाँ। ये देखिए कह रहा है, अरे जो घर पे ही बैठ के देख लेता ये शो में। टीम लीडर और एक ही एम्प्लॉय के साथ में है। बता भाई, छोड़ जोक वोक तो गए गधे में। अब बताओ ऐसा क्यों हुआ है आज? टीम लीडर जी, कपूर साहब हैं? क्या चल रहा है ये? बेचारा एकदम। नहीं यार, करो जो मर्जी करो, हमारा क्या। कहाँ रहते हो आप? करोल बाग। मैम आप? पटेल लगे। अरे ओ, एक स्टेशन आ गई है, मैं ड्रॉप कर यूटर्न मार लूंगा। आप वैसे डेट करो किसी को अलग से? और आप? नो। तो कर लो फिर। कितने बड़े भैया? ज्यादा बड़े हैं क्या? कितना कितने? क्या एज होगी भैया आपकी? 32। और आपकी बेटा? 32 और 22 वाले साथ में आ रहे हैं। इसका तो जो मैंने काटा है ना आज, कल कहीं सोच भी रहा होगा ना, यू नो नेहा, आई रियली लाइक, आई थिंक आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। भैया आपको याद नहीं उस दिन शो में क्या बोला था मैंने? ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। कर दो यार, 6.5 लाख पे नया वीडियो आज कर दोगे तो आज ही नया वीडियो डाल दूंगा, पहले एडिट करके बैठा हूँ। और उसके अलावा अपने बहुत सारे शोज कर रहे हैं, जूम शो कर रहे हैं, लाइव शो कर रहे हैं इंडिया वाला, और दुबई में मैं लाइव शो कर रहा हूँ 23 अक्टूबर को। तो अगर आप दुबई से या यूएई से देख रहे हो तो देख लो और आ जाओ शो के अंदर, है ना। सबके सब शो का जो टिकट लिंक है फर्स्ट कमेंट के अंदर है। यू कैन गो टू द फर्स्ट कमेंट, चेक आउट द लिंक एंड अटेंड द शो एज पर योर कन्वीनियंस। दिल्ली गुड़गांव वाले लाइव शोज का भी लिंक फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है।
तो तेजी में आ जाओ दोस्तों, मिलते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, उसके ऊपर रेगुलर शो अपडेट आते रहते हैं, तो वो भी अच्छी बात है ना। तो अगर शो में आना है तो अच्छी बात है। और उसके अलावा क्या कह रहा था, एक लास्ट चीज बता नहीं दिया, भूल रहा हूँ। हाँ, एक नया चैनल है गौरव कपूर व्लॉग्स, जो कि मैं उस पर रेगुलर वीडियो डालता हूँ, हर हफ्ते के 2 वीडियो टाइप, तो उसको भी फॉलो कर लो। पर ओनली अगर व्लॉग्स वगैरह देखना है तो उस पर स्टैंड अप कॉमेडी नहीं होती, ठीक है। चलो, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू, सी यू अगेन। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, all of you together? नाइस यार, नाइस। किस एरिया से आए हो आप? सब राजेंद्र नगर से आए हो? आप तो लग रहा है ट्रैक्टर में भर के ही आए हो किसी। इतने सारे लोग हैं ना, ये ट्रैक्टर लेकर निकले और हम भी जा रहे हैं। सब दोस्त हो आप लोग? एक सेम सोसाइटी? आपने हाँ की बोल दिया। जो बोल रहे हैं हाँ बोल, अगले पे चले। हाँ यस सर यस, फालतू सवाल नीचे बैठा है। सेम स्कूल? कौन से स्कूल के आप लोग? सलमान पब्लिक? सलमान बॉयज नहीं, पब्लिक? पब्लिक। ये मैम आप दोनों भी सलमान पब्लिक के? कौन सा विद्यालय? वाइम बगैलन? अरे भाई मेरे को मत समझाओ, मैं समझ गया हूँ, थोड़ा मेरे को जोक लेने दो ना 2-3। मैं समझ गया हूँ, थोड़ा अमीर स्कूल है, मैं समझ गया हूँ, बोर्डिंग वाला, वो वुडस्टॉक टाइप का स्कूल ना, वैसा वाला ना। क्लोज टू वुडस्टॉक माने जैसे वहाँ का? हाँ ऑब्वियसली, तभी तो उसका नाम पता है मेरे को। ये क्या वर नाम तो बताओ। वाइनबर्ग एलन मसूरी। ओह, एनीवन एल्स नोज अबाउट दिस स्कूल? यू हैव नो आइडिया? तो किसने एडमिशन कराया? आपके पेरेंट्स को पता कैसे चला स्कूल का? तो कौन सा बोर्ड होता है आपका? इंटरनेशनल बोर्ड रहता है पहले से ही? ICSE। ओह सही है भाई। आप कौन बॉयफ्रेंड? आप CBSE ICSE? सलमान पब्लिक की हो तुम तो। भाई हमने सलमान बॉयज से मैच खेला क्रिकेट, पता है आपको? एक टाइम जैसे आई डोंट नो इफ यू गाइस नो, कितने आप लोग तो छोटे लग रहे हो, कितना क्या ईयर ऑफ बर्थ क्या आप लोग का बेटा? 23 ईयर ऑफ बर्थ 23 है। थोड़ा तो यार एक तो लॉजिक लगा लो यार, एकदम ही मतलब इतने अच्छे वेन्यू पे आए हो। ईयर ऑफ बर्थ क्या 23? आज बर्थडे है इसका, सही है, तभी मफलर लपेट के आई है। सही है, मफलर पहन लिया आपने आज, पूरा वो लग रहा है मोहब्बत है कि वो नहीं थे शाहरुख खान के स्टूडेंट्स। गर्लफ्रेंड ने दिया है तो तू इनके साथ क्यों आया फिर? वो बिजी है क्यों? उसका भी हस्बैंड अलग है क्या? आजकल क्या चल रहा है यार? कहाँ है आपकी गर्लफ्रेंड? किधर है? घर पे? हाँ लेडीज को तो घर पे रहना चाहिए। बिल्कुल। अरे डरो मत यार, जोक से सबकी फटकी। क्या बोल रहा कुत्ता कमीना? मजाक कर रहा हूँ यार, कहीं बाहर निकलना चाहिए सब्जी लेने के लिए, वरना नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार। हाँ मैं सलमान बॉयज का बता रहा था। तो हमारे स्कूल का एक बार मैच हो सलमान बॉयज से, हम गए थे, मैं खेलने गया था मैच। भाई वहाँ के इतने, मतलब मैं भी ज़्यादा लंबा नहीं हूँ, मतलब मैं लंबा हुई नहीं। वहाँ के मेरे से भी छोटे छोटे लड़के मुंह पे बॉल मारते हैं, और मेरे मुंह पे नहीं 6 फुट के लड़कों की बॉल। तो हमें याद है उन्होंने सलमान बॉयज ने मारे थे 254 रन 40 ओवर में, 254। हमने पूरी टीम ने मिला करके मारे 38। हाँ हाईएस्ट स्कोर था हमारे एक्स्ट्रास का 13 रन। बाकी 2 एज लग के, अरे भैया जो कहाँ है बॉल? लड़के खेल रहे भाई बहुत तेज मार रहा है। जो वन डाउन लड़का जाता था ना, पहले वाले को इतनी तेज बॉल पड़ी, क्या भाई मैं थोड़ा रुक के जाऊंगा, मेरे ना थोड़ी इंजरी, मेरी हल्की इंजरी सी लग रही है। मैम आपने LV का बैग आगे चिपका दिया। आपने पता क्या करा, इन सबके मुंह पे लात मारी है पीछे। हट गरीब, ये रहा मेरा LV, ये देख 60% ऑफ में एयरपोर्ट से लिया था मैंने ये। नहीं मैंने देखा LV के बैग वाले यहीं, कोई रैंडम बैग होता है ना, देखो मैम ने चुपचाप सीट के अंदर छुपा कर, इन्होंने अलग कुर्सी ले ली, मेरे को अलग कुर्सी दे दो, मैं यहीं रख देती सही, पीछे टांग देते यहाँ पे। कितने का लिया है बैग? 160। डॉलर से बात करोगे मेरे से अब आप? 1,60,000 का बैग है ये। ओए भाई ये बैग पे फोकस करना चाहिए। ये 1,60,000 का बैग है ये।
और आपने बोला आप कुछ कमाते भी नहीं हो। एक बार अंदर से आत्मा ने आवाज नहीं दी कि थोड़ा सा फर्स्ट कॉपी खरीद लेती हूँ? भाई 1,60,000। मैम इसमें धूल लग रही है, मैं साफ कर देता हूँ। भाई कोई कपड़ा पड़ा दो, यहाँ हल्की धूल लगी है, मैं साफ कर देता हूँ बैग को यार। 1,60,000 का बैग, पीछे के बंदे पूछ रहे भाई साहब कह रहे मेरे 2 महीने की सैलरी है ये। सही यार, 1 लाख मतलब 1,60,000 का एमआरपी था कि आपने भी 1,60,000 ही दिया इसका? एमआरपी और इतना ही दिया। आई डोंट बाय इन सेल, यू नो। हम तो पैंटालून्स की भी सेल में जाते हैं, पता आपको? एक बार मैं पैंटालून्स में गया, सो आई यूज्ड टू वर्क विद पैंटालून्स, आई यूज्ड टू वर्क इन रिटेल विद बिफोर दिस। तो हमारा थोड़ा स्टोर स्टिंट होता था, लाइक यू हैव टू वर्क ऑन स्टोर फॉर सम टाइम। भाई पैंटालून में कस्टमर बोलते हैं ना, कस्टमर इज किंग। सुना है आपने लाइन? कस्टमर इज किंग व्हेनेवर यू वांट टू, बिकॉज़ मैंने कहा सब कस्टमर किंग नहीं होते, कई 1 नंबर के भिखमंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। पैंटालून के स्टोर पे एक टी शर्ट मिल रही 99 रुपए की, 99 रुपए की एंट्री टी शर्ट। आगे सर देख रहे, अरे इसमें कुछ और वैरायटी दिखाइए। मैंने कहा बुड्ढे में सिला हुआ कपड़ा मिल रहा है ना, उठा के ले जा। 99 रुपए में है, वैरायटी चाहिए इसमें तेरे को। सर आपने क्या, आप कुछ नहीं लेते ये बैग वैग ऐसा महंगा? किस चीज़ का बिजनेस है आपको बताया आपने? स्टील पाइप्स का। स्टील पाइप्स का। जब ये इसका कार्ड स्वाइप ही होगा, जब इसका कार्ड एक बार स्वाइप हुआ होगा, थोड़ा तो आपको लगा ना पाइप मेरे अंदर ही गई है। हल्की सी फीलिंग आई ना, अरे मैच। एक बार का तो मन में आया डिक्लाइन हो जा, अरे डिक्लाइन हो जा, बेइज्जती सह लूंगा मैं भाई। ये क्यों हो रहा है? अरे हो गया, कट गया पैसा, कट गया, 1,60 कट गया भैया। 1,60 का बहुत, मैंने सबसे महंगा बैग देखा है आज तक का। आप गुड़गांव से ही हो? लाइक बॉर्न एंड रेज्ड इन गुड़गांव? लखनऊ? आप लखनऊ कैसे मिले? पेरेंट्स ने मिलवाया? तो फैमिली फ्रेंड्स? सही है। कितना टाइम हो गया शादी को? 1.5 महीना? अच्छा 1.5 महीना हुआ है। अरे सही यार, आप तो एकदम नए नए कपल हो। कहीं गए हनीमून पे अभी? मालदीव्स? केरला भी? अच्छा सही है। तो इससे पहले आपने मिले थे आप किसी और बंदे से? नहीं, ये तो पहले ही मुझे पहले ही पसंद आ गया। हमारे लखनऊ में हम किसी से नहीं मिलते, वहाँ कोई किसी से नहीं मिलना। सर आप मिले? आप भी कभी नहीं मिले होगे। कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी मेरी, तो यही है पहली बार मैंने इन्हीं से बात करी। मिले आप पहले किसी से? कितने लोगों से मिले? गर्लफ्रेंड थी? बताया था शादी के पहले? कितने का बताया था? 2 या 4? 3? ओह टिक टिक लगा लो। ये आया वीर बाजार वाला आदमी, देखो। ये वीर बाजार वाले भैया ठीक लगाओ यार, क्या बात कर रहे हो? जिंदगी की बात हो रही है, ठीक ठीक लगा लो यार भाई साहब। आप कितने बॉयफ्रेंड मैम इनसे पहले? एक था। सही है। तो कैसे हुआ ब्रेकअप? गड़े मुर्दे उखाड़ दूं? नहीं। कहीं हनीमून पे आप लोग केरला गए, तो क्या करा आप लोगों ने केरला में? इनमें इतनी क्या हंसने की बात? आपने क्या करा था? आपने तो कार्ड ही स्वाइप करा था, अरे खरीद। इनका हर कार्ड स्वाइप पे टोई। एवरी टाइम 1,60,000। अरे चुद गया मैं, यही सेक्स हो गया मेरे साथ, मुझे और कुछ नहीं करना। भाई नहीं मजाक कर रहा हूँ सर। अब यार कॉमेडी शो में ही होता है ना, थोड़ा थोड़ा मन में कह रहा हूँ सही, और बोलो और बोल और बोल। यहाँ पता है मैं बातें कर रहा हूँ, सब लोग शो में एंजॉय कर रहे हैं, इन तीनों को सिर्फ पिज्जा खत्म करना है। इनके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा, इनके चल रहा ये ज्यादा ना खा ले, एक स्लाइस मेरा दे। मैं जब मुंडी घुमा इसको देख करके मैंने दिए हैं पैसे, मैं भी खाऊंगा। पूरी चटनी लगा के मेरा पिज्जा ना छूट जाए थोड़ा सा भी, या हराम को ज्यादा खा लेगा। ठीक है भाई, कोई नहीं, खा लो खत्म कर लो, कोई बात नहीं। थोड़ी
चलेगा आप लोगों से बातें करेंगे तो? चलेगा ना आपसे? आप मेरे वीडियो में आओगे तो चलेगा? मैम आप बताओ, है ना? एक थम्स अप ऊपर से करो ऐसे, कैमरा में आ गया ना इनका थम्स अप है ना? मैं पहले वो ले लेता हूँ परमिशन, वो अच्छा था 1,60,000 वाला ना, वो इंटरेक्शन बहुत अच्छा आ गया किस्मत से। आपके बैग ने आपको कुछ दिया नहीं दिया, मेरे को 50-60 हज़ार रुपये दे दिए। मेरा लाख रुपए का यूट्यूब रेवेन्यू आ गया। 1,00,000 का खर्च, 1,60,000 का खर्चा अपना लाख वसूल मैं कर रहा हूँ, देख रहे हो? दिस इज व्हाट इज बिजनेस। Okay, दोस्तों, तो दिस इज द लास्ट वीडियो फ्रॉम 2022 ऑन दिस स्टैंड अप कॉमेडी चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज दैट आई पुट आउट अक्रॉस द ईयर। टू बी वेरी ऑनेस्ट 2022 हैज़ बीन अ रियली गुड ईयर फॉर मी। मतलब मेरा काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इस साल हुआ, मतलब मेरी यूट्यूब चैनल की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इस साल हुई। 1 million is what we touched this year. So thank you so much for supporting. Thank you so much for liking all the videos, sharing it with your friends. This was the last video. ये रिकॉर्ड बहुत पहले हुआ पड़ा था, पर मेरे को अचानक से याद आया ये 1,60,000 वाला इंटरेक्शन, तो मैंने ढूंढा ये वीडियो और फिर मैंने उसको एडिट कराया और फिर मैंने कहा डालते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सम फाइनल शोज ऑफ दिस ईयर आर हैपनिंग नाउ। 23rd December it's in Bangalore Whitefield. 24th December which is Christmas Eve I'll be in Pune. 25th December it's in South Mumbai में है South Mumbai. 30th December again in Mumbai which is in Bandra. 31st December गुड़गांव और 1st January 2023 को आई एम डूइंग माई बिगेस्ट शो इन दिल्ली कमानी ऑडिटोरियम मंडी हाउस। टिकट लिंक एक मैं फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा बुक माई शो पे सारे शोज अवेलेबल है। तो सी यू गाइस इन दीस शोज। नेक्स्ट ईयर की शुरुआत करेंगे मेरा फेवरेट स्टैंड अप सेट रिलीज करके और उसके बाद कुछ टाइम की छुट्टी पे जाऊंगा दोस्तों एंड विल बी फोकसिंग मोर ऑन ब्लॉग चैनल फॉर सम टाइम। सी यू गाइस, थैंक यू।